And we are live. So, hello and welcome everyone to yet another webinar by Board Infinity. Today, we are joined with our coach Ankit to tell you about how a digital marketer's guide to make a career in a biddable market. So, Ankit sir, first of all, would you like to give me your introduction, and then again, would you like to tell us about what a biddable market is? Okay, so thank you so much for the introduction. My name is Ankit, as you mentioned. So I'm a digital marketer and digital consultant. So I started my career in 2015, and it's been more than 5 years. And so it's my privilege to work on some of the biggest accounts, like HP, Nissan, Huawei, HUL, PNG. And I got a chance to work on so many platforms like Facebook, Google, programmatic, e-commerce, SEO, SEM, video, display marketing. So when we talk about digital, so I have worked on every platform as of now, which are in the market. So if I talk about the biddable platforms like when you are buying ad space on a real-time basis, like Facebook, Google, Snapchat, Insta, Pinterest, LinkedIn, Twitter, and e-commerce, like Amazon, Flipkart as well. So what we do in biddable platforms, we buy inventory on a real-time basis. Like if I am a Samsung, you are a Apple, and we are, bidding on the same keyword like best smartphone, right? So you are bidding on the same keyword, I'm bidding on the same keyword. So we are, bidding on a real-time basis, and the person and the advertiser who bids high and who has a good association with the Google or Facebook gets a chance to rank above from their competitors, like so. And this is how the biddable ecosystem works. So it depends on so many factors. It depends on bidding, it depends on relevance score, it depends on your website, it depends on your past experience with the relevant platform. So this is something how this ecosystem works. And this is a very useful platform, a very economical platform for every advertiser, because there are so many advertisers in the markets who don't have enough budgets. So what they do, they start advertising via Facebook or Google because it's the cheapest and it's a very effective platform as of now. Right. All right, sir. So, जितना मतलब मुझे समझ आया, so biddable market is just like the normal bidding that we do, but it is for the keywords in the digital marketing space. So, like अगर आपका कोई Yeah, yeah. particular XYZ business है, and if I want to, advertise myself for the same business, so like there are multiple people जो Mm-hmm. same keyword use करना चाह रहे हैं, and then you are going to bid for it. Now you said, sir, that it is very Correct. convenient or it is very cheap. But the question I have in my mind is that you want one keyword and I want also one that particular keyword only. So we are going to bid against it, right? So Mm-hmm. in that case, it is going to be expensive for me, right? Correct. So how is it cheap or how can it be Yes. convenient? Can you tell something about that? Okay, okay. So, so as I give you an example of, if you are a Samsung, I am a Apple, right? We are bidding on Right. the same keywords, right? We are bidding on the same keywords. So it depends on so many factors. Like, if any new entrants came into the market, वो उस keyword पे bid करेगा ही नहीं. वो क्या करेगा, जैसे एम आई वहाँ पे आता है, ओप्पो आता है, वीवो आता है, या इनके पास कोई और माइक्रोमैक्स आता है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो उन कीवर्ड्स पे ऐड ही नहीं चलाएगा. वो उस कीवर्ड्स को छोड़ देगा, या फिर वो थोड़े से लॉन्ग लॉन्ग कीवर्ड्स पकड़ेगा, जैसे बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000, राइट? तो उस Right. कीवर्ड्स Right. को पकड़ेगा, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े एंट्रेंट्स हैं वो उसको वहाँ पे बिड को विन नहीं करने देंगे, वो खुद को बिड करेंगे, राइट? अगर मैं Right. सैमसंग की या मैं एप्पल की बात करता हूँ, वो जितने भी मतलब काफी जेनरिक कीवर्ड्स होते हैं उसका वो ऐड ही नहीं चलाता है. उसको पता है कि मेरा ऑडियंस वहाँ पे है ही नहीं. वो 15 से 20 हजार वाले को अपना ऐड ही नहीं दिखाता, क्योंकि उसे पता है कि भैया यहाँ पे मेरा ऑडियंस ही नहीं है, राइट? Right. Right. अगर हम यहाँ पे चीप और इकोनॉमिकल की बात करें, इकोनॉमिकल ऐसे है कि यहाँ पे ना पूरा गेम इंटेंट बेस पे चलता है. आपको ना एक अलग से बड़े सारे होर्डिंग बोर्डिंग नहीं लगाने पड़ते हैं, बड़ा सारा मार्केटिंग स्पेंड्स नहीं करना पड़ता है. यहाँ पे पूरा इंटेंट होता है. मतलब अगर आप सर्च करने जा रहे हो कि बेस्ट बेस्ट ट्यूशन फॉर मैथमेटिक्स फॉर 12th क्लास, राइट? तो आप अपने आसपास देखोगे कि कौन सा ट्यूटर उसे मिल जाएगा, राइट? तो ये इसमें काफी हर चीज इंटेंट बेस्ड चलती हैं. और प्लस यहाँ पे ना आपका पैसा जब भी कटता है जब आपको वेबसाइट पे आपके ऐड पे कोई बंदा क्लिक करता है गूगल एड्स All के right. ऊपर, तो तभी Okay. आपका पैसा कटता है. तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये पड़ता है कि जब बंदा क्लिक करेगा तभी पैसा करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एड सीन बाय द कंज्यूमर और माय ऑडियंस. अगर उसको 20 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार भी दिखा, लेकिन जब वो क्लिक कर रहा है वो नहीं करेगा. ऐसा गूगल में काम करता है. अगर मैं फेसबुक का बात करूँ, फेसबुक में दोनों इकोसिस्टम काम करते हैं. आपकी बाइंग दोनों तरह से होती है. आप इसको कॉस्ट पर क्लिक पे भी बाय कर सकते हैं और इंप्रेशन पे भी बाय कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव कैसा है. अगर आपके पास पैसा है, आपको कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है, और आपको उससे आप बोलते हो कि उससे पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में लोगों को अवेयर करूं, तो थोड़ा सा ना आप एक रीच बेस्ड कैंपेन चलाते हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बार दिखाते
Right. आते हो, एक बार लोगों को पता चल जाता है, एक बार जो कोल्ड ऑडियंस होती है फिर उसको आप रिटारगेट करते हो दोबारा कम्युनिकेशन से कि भैया अब ये Mhm. ऑडियंस आ गई है, इसको मैं कैसे सेकंड फनल में आके रिटारगेट कर सकता हूँ। All right. So the two takeaways I take is कि in a biddable market, first of all, that if you can go specific, you can buy the keywords for the cheap. Like just as you said, like if I'm advertising for my tuition, so if I add just my local area, then it becomes a very specific thing, and then I can get it for cheap. Like tuition in XYZ area for this market. तो करेक्ट। मेरा वो cheap हो गया. But if I write just the tuition word, so it is very generic, and other people can also bid for it. The second thing is that it will you will only be charged when करेक्ट someone is करेक्ट clicking on it. Amazing, amazing. So let us move our focus to the focus of करेक्ट the करेक्ट। theme of this today's और इसमें webinar. सब That yes, sir. या, इसमें सबसे बड़ा एक में सबसे बड़ा जो की टेक है ये भी आपको रिजल्ट्स यहाँ पे रियल टाइम मिलते हैं। आपने आज कैंपेन चलाया, Right. अगर लोगों ने सर्च किया, लोग आपकी वेबसाइट पे उनको आपके बारे में अच्छा लगा, तो वो अपना फोन नंबर अपना ईमेल Mm-hmm. आईडी आपको दे के चले जाएंगे, एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे Right. यू कैन रीच आउट टू दोज ऑडियंस, राइट, बिकॉज आपके पास टाइम काफी कम रहता है उसमें। और जितना जल्दी आप अपने प्रोस्पेक्ट को रीच आउट करते हो उतना ज्यादा कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, Right. 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 Amazing. So we are getting fresh insights as well. रादर देन Yeah. So let's करेक्ट move करेक्ट our रादर देन yeah. आप अपने किसी भी Yeah, so I was saying, sir, let's move our focus to the theme of today's webinar, that how can someone make their career in a biddable market? So, sir, would you like to tell me about the job scenario in this biddable market scene, and how should someone prepare for it? यस। Yeah. So after COVID, everybody has observed, everything is moving around digital only, right? सबके घर पे बैठे हैं Right, और हर एक को डिजिटल मार्केटिंग करनी है, whether स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेस, और मिड साइज बिजनेस, कैसा भी बिजनेस है उसको रीच आउट करने के लिए डिजिटल का यूज करना ही करना है, बिकॉज दे वांट टू रीच आउट टू देयर ऑडियंस बाय, बिकॉज दे वांट टू डू देयर मार्केटिंग बाय डिजिटल, राइट? So digital right, has become the key as of now. And if I talk about the Indian population, which is around 140 CR, and if I talk about the digital population of India, and which is around uh, 65 to between 65 to 70 crore, right? And which is approximately right, 45 to 50% of the entire population of India. So that's a very big number, right? तो अब हर एक को अपनी मार्केटिंग वाई डिजिटल करनी है, लेकिन सबके पास इतना पैसा नहीं होता करने के लिए, राइट? सबके right, पास नहीं होता कि वो बड़े बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया पे, राजस्थान पत्रिका पे, दैनिक भास्कर पे, अमर उजाला पे बड़े बड़े होर्डिंग लेके वहां पे लगाए जाके और इतना पैसा खर्च करे। हर एक को हर चीज इकोनॉमिकल चाहिए और बड़ी फास्ट चाहिए, राइट? किसी को पास इतना टाइम नहीं, ना किसी के पास इतना पैसा है। और इंडिया में यही दो ऐसे मीडियम है, फेसबुक, गूगल, इंस्टा और यूट्यूब, जहां से आप अपने ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड यहीं पे है। जनरली पीपल 1 से 1.5 से 2 घंटा डेली स्पेंड करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो बढ़िया है ना कि आप उसी प्लेटफॉर्म पे जाओ जहाँ पे आपको रिजल्ट जल्दी फास्ट के फास्ट मिल जाए, प्लस आपकी चीजें जल्दी से right, जल्दी आसान हो जाए। तो उसको करने के लिए ना पीपल आर स्काउटिंग फॉर दोस एट दोस मार्केटियर हु नो हाउ टू रन कैंपेन्स ऑन फेसबुक, इंस्टा, गूगल, यूट्यूब, राइट? So this is something I want to highlight कि this has become a key platforms for every marketeer और प्लस और एज एवरी एडवर्टाइजर कि जो कम से कम पैसे में उनको ज्यादा से ज्यादा आरओआई आ जाए और इंस्टेंट आरओआई आ जाए। तो इसलिए right, ये 2 या 3 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे आप अच्छे से अपने आप को स्किल को होन करके यू कैन इजीली मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। एंड इफ आई टॉक अबाउट outside of India, if I talk about US market, Europe markets, and they are looking for the people from India or from Philippines or Sri Lanka जिनको फेसबुक, गूगल अच्छे से आता है, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज काफी अच्छे मिल जाते हैं, काफी right, उनके लिए सस्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन हमारे लिए काफी अच्छा है। And for a month, they easily give you, 2,000 to $3,000 per month, which is around, right, which is ranging between 1.5 to 2.5 lakhs per month. और ये कोई मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है एज ए बिगिनर के लिए, या right, जो भी कोई कॉलेज में जा रहा है या जिसने भी कॉलेज पूरा किया जिसको नौकरी नहीं मिला, एंड ही कैन इजीली मेक right, अ गुड अमाउंट ऑफ मनी by freelancing from all these freelancing activities. right, right, right. Amazing. So, sir, you're talking about that there is a lot of scope in the all the freelancing activities. So, how can someone Correct. get started with the freelancing opportunities itself? Because if I'm looking for a digital marketer first, I would want someone जो खुद भी visible हो. And if a fresher Correct. is starting out, so how can they make their profile visible? And how can they attract the customers?
ओके, सो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू मेक देयर लिंक्डइन प्रोफाइल, राइट? लिंक्डइन पे उनको डेली Right. डालना है कि मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे कीवर्ड डालना है, फेसबुक मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, इंस्टा मार्केटिंग, स्नैपचैट मार्केटिंग, बिडेबल मार्केटिंग, Right. ऐसा कुछ करके उनको डेली पोस्ट डालना है। और जितने भी Right. फेसबुक पे काफी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक पे काफी सारे फ्रीलांसिंग ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ वो काफी कुछ कर Right. सकते हैं, जाके अपने बारे में डाल सकते हैं, अपने स्किल्स के Mhm. बारे में अच्छे से अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं। और जो भी उनके रिजल्ट्स आते हैं Right. ना, उनको Right. जरूर पोस्ट करें, वो रील्स बना के रिजल्ट्स को पोस्ट Mhm. करें कि क्या निकल के आया, मैंने कितना पैसा लगाया था, कितने आरओआई आई, क्लाइंट्स में क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है मेरे साथ काम करने से, प्लस मेरा किस तरह का Mhm. क्लाइंट था। क्लाइंट का नाम नहीं बताना, लेकिन बता सकता है कि आई एम वर्किंग फॉर ए क्लोथिंग ब्रांड, आई एम वर्किंग फॉर ए ज्वेलरी ब्रांड, आई एम वर्किंग फ्रॉम एजुकेशन सेक्टर। तो ये ना, काम दिखाने से ही काम मिलता है आपको, ठीक है ना? अगर मेरे पास, अगर मैं कोई क्लोथिंग बिजनेस कर रहा हूँ और आपने कुछ रिजल्ट डाले हैं, तो मुझे लगा कि यार आयुष कुछ अच्छा काम कर रहा है, इसको रीच Right. आउट करते हैं। फिर मैं आपको अपने बारे में ब्रीफ करूंगा, फिर आप मुझे बताओगे कि सर ये चीजें हैं, हम ये कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भैया मैं जो बोल रहा हूँ उससे रिजल्ट्स नहीं आने वाले, तो आपको साफ मना कर देना है। मतलब क्लाइंट की हाँ में बिल्कुल नहीं मिलानी। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो नहीं, साफ मना कर दो। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट एक महीने आया, Right. आपको पैसे दे दिए, फिर आप उससे लड़ाई कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। इट्स बेटर Right. कि Right. भैया आपको जो लगता है, बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, you have to be very blunt and you have to be very aggressive, कि क्या करना है क्या नहीं करना आपको, क्योंकि रिजल्ट्स लाना आपके ऊपर है, बिकॉज यू आर द वन हु इज अकाउंटेबल, एट द एंड। Right. तो आपको वही काम करना है जो आपको ठीक लगता है, और क्लाइंट को आपको बता देना है कि भैया दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू वर्क फॉर यू, एंड इफ यू आर वेरी रिजिड कि आपको ऐसे करना है, आई विल वर्क फॉर यू बट आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर दिस, राइट? तो Right. जितना जल्दी आप कर सकते हो, जितना आप क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंट रह सकते हो, और जितना क्वेश्चन उससे पूछ सकते हो, जब भी कोई क्लाइंट का आपके पास ब्रीफ आता है, उससे आप हर चीज पूछो, क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन सी मार्केट्स है, आपके Mhm. पास लर्निंग्स क्या क्या है, आपका क्रिएटिव कम्युनिकेशन क्या क्या है, आप उससे हर चीज पूछो। जितना आप उसके बिजनेस में डिग इन करोगे ना, उसको वो भी आपकी मतलब नॉलेज को अप्रिशिएट करेगा। Mhm. Right, amazing. See, this is what I love about our platform when we reach out to coaches like you. These are the kind of practical advice the students and the freshers get, right? Anyone can teach about the basic digital marketing fundas or how to run a campaign, but this type of life skills are only limited to when we have a mentor or when we have a coach. So it was a great point that करेक्ट। client की हाँ में हाँ हमें हमेशा नहीं मिलानी है, otherwise because end of the day we are going to be accountable for the campaign, and if this is something which is not feasible, we should not proceed forward with that. So Ankit, is there anything one should keep in mind when they are going with the biddable market? And also, how do you decide that what is the appropriate value for a particular keyword? सो जब भी कोई आप फेसबुक पे, सॉरी, यूट्यूब पे कोई कैंपेन प्लान करते हो ना, तो यूट्यूब पे आपको जब आप Hmm. कैंपेन दिखाते हो, वहाँ पे साइड में दिखा देता है इसका बिड रेंज कितना होना चाहिए। तो देखो, मार्केटिंग में क्या Hmm. होता है, डिजिटल में आपको हर चीज़ टेस्ट करनी पड़ती है। मतलब आपका कोई Right. एक एक्सेसरी क्लोथिंग ब्रांड है, और साथ में मेरा भी कोई ब्रांड है, अगर मैं कोई कैंपेन आपके लिए चला रहा हूँ, तो चांसेस ऐसे बहुत ज्यादा हो सकते हैं आपके लिए कोई कीवर्ड अच्छा करे, मेरे लिए ना करे, या आपके लिए कोई इंटरेस्ट अच्छा काम करे, मेरे लिए ना करे। तो ये हर चीज, Hmm. मतलब ये यहाँ पे रेकमेंड किया जाता है, हर चीज को टेस्ट करो, टेस्ट करो, टेस्ट करो। Right. जितना आप टेस्ट करोगे ना, उतने रिजल्ट निकल के आते हैं। ऐसी काफी सारी Hmm. चीजें होती हैं जो एचपी के लिए काम करती थी, डेल के लिए काम नहीं करती थी, डेल के लिए काम करती थी, एचपी के लिए काम करती थी। क्योंकि Right. ये सारा ना एक पूरा एक एल्गोरिदम है, एआई है, वो पता नहीं आपके साथ कैसे बिहेव करेगा। तो आप हर चीज को टेस्ट करो। बेसिक Hmm. रिकमेंडेशन आप क्लाइंट को बता सकते हो कि मैंने इस कैटेगरी में काम किया, ये ऐसे ऐसे काम करेगा, आप इसको ऐसे ऐसे पूरा एक फनल बना सकते हैं। किस ऑडियंस को, कितनी ऑडियंस यहाँ पे आएगी, कितनों को रिटारगेट करना है, कितनों को हम फिर फोन करेंगे, कितनों को फिर हमारा बिल्कुल एक लोअर फनल में आ जाएगा। तो ये हम पूरा एक फनल बना के हम क्लाइंट को बता सकते हैं कितना आ जाएगा। प्लस अगर आपको कुछ भी गलत लगता है, क्लाइंट ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, आपको साफ साफ मना कर देना। आपको बिल्कुल हाँ में नहीं मिलानी है, क्योंकि एक बार तो क्लाइंट आ जाएगा, फिर वो दोबारा नहीं आएगा आपके पास। तो आप शुरू से ट्रांसपेरेंट Right. रहोगे ना, Right. तो मतलब गलत काम करने से बढ़िया है कि आप ना ही करो, क्योंकि आपको भी अपना मार्केट में फेस वैल्यू बनानी है। Right. Amazing. So yeah, this brings me to the second takeaway of the session, that never make any assumption. What might have worked previously that may not work this time, and we should test Yeah. everything out. All right. So, हम्म। sir, जो आप बता रहे थे कि जो biddable range that you see on YouTube or any other platform, how accurate are they? Like, how good are they? Hello. Uh, All right, audience. So I think Sir has got disconnected. In the meanwhile, if you have any questions, you can drop down the chat so that I can ask Sir in the when they come back. And definitely, if you are interested in the space of digital marketing or data science
or full stack development, if you want to accelerate your career, then you can join us on boardinfinity.com. You can find the links in our comment box. And I think Ankit sir is back. Yes sir, so why don't you continue what you were saying? Yeah, so I was saying only, whenever you plan any new campaigns, so whatever brief client is given to you, so you need to have so many questions from the client कि आपके बिजनेस में क्या है, क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. फिर उसके बेसिस पे आपको पूरी अप्रोच बनानी है कि कैसे कैसे काम कर सकता है. अगर आपके पास उस फील्ड का एक्सपीरियंस है, उस कैटेगरी का, उस नीश का एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छा है आपके लिए. नहीं है तो फिर आप उसको टेस्ट करो अच्छे से और क्लाइंट को बताओ. और शुरू शुरू में रिजल्ट्स कभी भी नहीं आते हैं आपके पास. 15-20 दिन, 1 महीना लग जाता है, क्योंकि सिस्टम भी डेटा इकट्ठा करता है. पहले पहले वो इतने लोगों को Right. ऐड दिखाएगा, फिर उसको आप रिटारगेट करोगे, फिर उसको आप एक नया कम्युनिकेशन दिखाओगे, फिर उसको पूरा फिर रिटारगेट होने के बाद आपके पास अगर कोई क्वेरी आती है, फिर उसको आप फोन से करोगे. अगर कोई हाई टिकट आइटम है, कोई 25 से 30-40 हजार का All right, I think there is once again some gap. There is some network error. We all are used to it now that we are working from home. So yes, just I was saying previously that if the world of digital marketing is something that excites you, you can very well join us for the live coaching, which will be provided by the industry experts themselves who are already working as a digital marketer somewhere, or not only digital marketing, but we have courses for data science, we have courses for machine learning, we have for website development, that is full stack development. So all of you can join for us. And I think Ankit sir's connection is back again. Yes sir. यस सर. सो आई वाज सेइंग कि कुछ भी आपको होता है तो आपको यहाँ पे हर चीज टेस्ट करनी पड़ती है. तो बेसिस टेस्टिंग अपने क्लाइंट को बता सकते हैं, और कभी भी कोई फेक अजम्पशन नहीं करनी है कि क्या आएगा नहीं आएगा. सामने साफ साफ बोल देना है कि आप ऐसे ऐसे कैंपेन चलाएंगे, ऐसे ऐसे सब कुछ होगा, धीरे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे. और आप उनको जब अपने पास्ट रिजल्ट दिखाओगे ना, तो वैसे भी वो मान जाएगा कि भैया हाँ आप लोगों ने काम किया होगा. So Ankit, this brings me to the next point. Like when you said that there are multiple opportunities starting as a freelancer, and it is one thing getting a individual client, but what about getting a corporate client? So how big do you need to be, or what kind of results do you need to have to attract or crack a corporate client? देखो, कॉर्पोरेट क्लाइंट का सबसे बड़ा इश्यू होता है ना, क्योंकि एक तो वो अपने आप में काफी बड़े हैं, राइट. तो वो किसी फ्रीलांसर से काम कराना काफी कम पसंद करते हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा ना अपना एक स्टेचर का रहता है कि भैया मैं भी जितना बड़ा हूँ मैं उस बड़ी एजेंसी के पास जाऊँ. तो ऑल्दो जब आप थोड़ा सा बड़े हो जाते हो, अपनी टीम को बिल्ड करो, अपने आप को एक्सपोज करो, लिंक्डइन पर रिजल्ट डालो अपने, तो चांसेस है कि वो भी आपको अप्रोच करें. क्योंकि कोई छोटा प्रोजेक्ट होता है ना, कोई 20-30-40-50 हजार का, तो आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी एजेंसी छोटे काम के भी ज्यादा पैसा मांगती है. राइट, कर सकते हैं. तो अगर आपके पास कंटिन्यू रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपको लगता है कि भैया मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उनके बजट्स भी काफी बड़े होते हैं. प्लस आप कोई भी आपके पास कॉर्पोरेट क्लाइंट आता है ना, तो वो भी मतलब महीने का 1-2 करोड़ 3 करोड़ खर्च करता है, और आपको पेमेंट वो जो देता है वो 1.5 से 2 महीने में देता है. तो तब आपके पास वर्किंग कैपिटल भी होना चाहिए उसको होल्ड करने के लिए. अगर आप इतने बड़े हो जाते हो, तो फिर आप उनको रीच आउट करो. अगर कोई आपको रीच आउट भी करता है, तो पहले आप एक क्लोज डाल दो कि भैया मुझे एडवांस पेमेंट चाहिए होगा, नहीं तो मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा. Right. तो ये सबसे Absolutely. Yeah. So this was the thing, that is when you have your own firm. But let us say you're working in some agency which is very well established, and now you have got a big corporate client. So how is the pipeline then? What is the digital marketing pipeline there? And when does the biddable market thing enter? Like, is it in the starting, is it in the ending, or is it in the middle? देखो, कोई भी कैंपेन, व्हेनेवर आई प्लान एनी न्यू कैंपेन, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, मेरा ऑडियंस कहाँ कहाँ पे है, राइट. अगर आप बोलते हो कि आई वांट टू रीच आउट टू 25 to 45 इयर्स ऑफ एज, जो मेरा सामान खरीदता है वो मेल होना चाहिए, वो टॉप मेट्रोज में रहता हो, तो मैं चेक करूंगा कि भैया मेरे जो मेरा वो ऑडियंस है उसके मीडिया टच पॉइंट्स क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ पे है. वो फेसबुक पे है, वो गूगल पे है, वो स्पोर्टिंग वेबसाइट्स पे है, वो एंटरटेनमेंट पे है, वो ट्रैवल भी करता है, वो शाम को नेटफ्लिक्स भी देखता है, राइट. वो स्पोर्ट्स भी खेलता है, वो गाने भी सुनता है, वो सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड भी करता है, वो लिंक्डइन पे भी जाता है, वो सारे काम करता है, राइट. तो फिर मैं देखूंगा कि मैं इन सब पे अपने टीजी को कहाँ कहाँ रीच आउट कर सकता हूँ. अगर क्लाइंट के पास पैसा बहुत सारा है, तो मैं सब पे रीच आउट करूंगा, राइट. ऑल्दो उसका डुप्लीकेशन काफी हुआ, क्योंकि वो लिंक्डइन पे भी है, वो यूट्यूब पे भी है, ऑडियंस तो सेम ही है ना. अगर मैं आपको रीच आउट करता हूँ, आपको मैं फेसबुक पे भी कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी कर रहा हूँ, गूगल पे भी कर रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी कर रहा हूँ, गाना पे, नेटफ्लिक्स पे, सावन पे, सब कर रहा हूँ. ऑल्दो नेटफ्लिक्स वगैरह तो भी एडवर्टाइजमेंट अलाउ नहीं करते, लेकिन जितने भी Z5 हो गया, वूट हो गया, व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ, राइट. तो अगर आपके पास पैसा लिमिटेड है, तो फिर हम देखते हैं कि थोड़ा सा फेसबुक और गूगल ही करें, क्योंकि वहाँ पे
आपको इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता और आप काफी लोगों को रीच आउट कर जाते हो कम पैसे के अंदर ही। अगर आपका राइट। पैसा अच्छा है, आपको बोलना है कि हाँ मुझे एक बंदे को 5 से 6 बार ऐड दिखानी है और मुझे पहले अपना एक अवेयरनेस को बिल्ड करना है, उसके बाद फिर हम लोग सेल्स की बात करेंगे। पहले तो बस मुझे अपने आप को ब्रांड बनाना है अपने आप को ही, तो फिर मैं अपने आप को राइट। पूरा बॉम्बार्ड कर दूंगा सारे प्लेटफॉर्म पे। आपने 1.5, 2, 3 साल पहले ऑब्जर्व भी किया होगा, हर जगह ओप्पो वीवो के ऐड दिखते होंगे आपको, राइट। राइट। पे राइट। टीवी पे, अपना आउटडोर पे, पेपर पे। आप कहीं पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं, वहां पे लोगों ने तो मीम बनाने शुरू कर दिए थे। आपने क्या क्या I देखा, मैंने think सब yes, देखा, yes, yes. ओप्पो Yeah. वीवो के And I think the बिलबोर्ड। same thing is going in the digital space for Cred and Zomato right now. That यस। every second online ad is theirs only. हाँ हाँ, वो शाम को 7 बजे के बाद काफी एक्टिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि सब लोग अभी खाना Right. खाने का टाइम हो गया, तो शाम को उनके ऑफर्स ऑफर्स Right. उनके सब आने शुरू, पुश नोटिफिकेशन मैसेजेस आपको यूट्यूब पे जो शॉर्ट वीडियो एड्स होते हैं वो आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा है, वो सब डिपेंड करेगा कि आपका बजट कितना है, और बजट भी डिपेंड करेगा कि आपकी ऑडियंस कितनी है। Right. जनरली आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, आपको बोलेगा कि मेरे पास तो 2 लाख का बजट है, लेकिन वहाँ पे ऑडियंस है कम से कम 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ को रीच आउट करने के लिए 2 लाख तो बहुत पैसा कम है, राइट। तो Right. कभी भी क्लाइंट से बजट पूछना अच्छी बात है, लेकिन क्लाइंट को बताना बहुत जरूरी होता है कि वहाँ पे इतना ऑडियंस है, इसको रीच आउट करने के लिए कितना पैसा लगेगा। फिर Right. उसको अपनी जेब चेक करनी है कि भैया मेरे पास, मेरी अगर जेब अलाउ करती, कितनी मेरी जेब अलाउ करती है। अगर कहते हैं मेरे पास 2 लाख ही है, तो हम बता देंगे 2 लाख में इस ऑडियंस का आप 10% रीच आउट कर पाओगे, 15% Right. रीच आउट कर पाओगे। आइडियली मार्केट में क्या होता है ना, लोग बजट पहले पूछते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। बजट तो नहीं होता ना, बजट तो आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपकी ऑडियंस Right. को आपको ऐड दिखानी है, राइट। तो पहले अपना ऑडियंस को चेक करना है, वहाँ पे ऑडियंस पे बेस कितना, उसके बाद आपको बजट बताना है कि भैया हाँ आपको इतना पैसा लगेगा। फिर क्लाइंट Right. देखेगा, फिर क्लाइंट को बताएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि 1 करोड़ लोगों को रीच आउट करने के लिए मेरे को 10 लाख लगेगा, उसके पास है ही Right. 2 लाख रुपए, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं 20% को रीच आउट कर पाऊंगा, राइट। Mm-hmm. तो क्लाइंट्स के सामने एक्सपेक्टेशन सेट कर देनी है। सो वी डू नॉट वांट क्लाइंट विल कम टू अस बाय टुमारो एंड से कि हमने तो इतने कम लोगों को रीच आउट किया। सो वी हैव टू टेल देम इन Right. एडवांस कि हम मोटा मोटा इतने लोगों को रीच आउट करने वाले हैं, एंड दिस इज द अप्रोक्सीमेट। तो Right. डिजिटल मार्केट है ना, हर चीज अप्रोक्सीमेशन पे चलती है, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं कब आपको बिडिंग सस्ती मिल जाए, कब महंगी मिल जाए, कब आपको क्या हो जाए, तो कुछ नहीं पता होता, Mm-hmm. बस आपका एक एस्टिमेशन चलता है यहाँ पे। Right. Amazing, sir. So, any career advice or any tips for people who are starting out their career in the biddable market? हाँ हाँ, तो सबसे बड़े ये है कि इंडिया में अब मतलब आप देखो ना कि 80% जो भी नए बिजनेसेस आ रहे हैं वो सब डिजिटल के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं अपने, राइट। और उनके पास इतना Mm-hmm. पैसा भी नहीं है, राइट, करने के Right. लिए। ठीक है, तो सबसे बढ़िया है कि आप फेसबुक, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स ये सीखो अच्छे से, और Mm-hmm. आप अपने क्लाइंट को रीच आउट करो, अपने रिजल्ट दिखाओ उनको। और हर चीज मतलब थोड़ी सी जो भी एक अप्रोच से बात करनी है, ठीक है ना, एक लॉजिकल से बात करनी है। कुछ क्लाइंट कुछ भी बोल रहे हैं कि मैंने ऐसे किया था, वो किया था, ठीक है सर आपने किया था, लेकिन मैं ऐसे करने वाला हूँ। उसको भी सुनना है, ऐसा नहीं है कि अपनी अपनी चलानी है। उसको सुनना है, समझना है, उसके पास रिजल्ट देखने हैं, उसका एनालिटिक्स पूरा चेक करना है कि जो वो बोल रहे हैं सही है भी नहीं है। कई क्लाइंट बोल देते हैं यार मैंने लास्ट ईयर कैंपेन चलाया तो मेरे को 400 रुपये में एक लीड आ गया था, लेकिन अगर आप जब पूरा आप रिसर्च करने बैठते हो पूरी, तो आपको लगता है 1000 से कम तो आ ही नहीं सकता, 800 900 से कम तो आ ही नहीं सकता। तो उसको बोलो कि आप Mm-hmm. अपना एनालिटिक्स हमें दिखाओ, हम पूरा चेक करेंगे, फिर उसको बताना। ऐसा मतलब बिल्कुल Right. हवा में बातें नहीं करनी है अपने को, हाँ हम आपको ला के दे देंगे, ये कर देंगे। पूरा उससे Right. समझना है, Right. उससे जितने क्वेश्चन आप पूछ सकते हो पूछो उससे। उसको परेशान कर दो Mm-hmm. बिल्कुल, पूछ पूछ के, क्योंकि रिजल्ट्स आपको ला के देंगे, राइट। तो जितनी Right. इन्फॉर्मेशन आप उस ब्रांड के आपके पास होगी, आप अच्छे से अपने आप को ग्रो कर सकते हो, उसके रिजल्ट्स ला सकते हो। और Mm-hmm. 99% चांसेस है एक बार रिजल्ट आने शुरू हो गए तो क्लाइंट आपके पास से कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि आप शुरू से ट्रांसपेरेंट हो उसके साथ। Right. Right. Amazing. So, sir, we have a question from the chat. What is the biggest challenge facing digital marketing today? चैलेंज तो सबसे बड़ा है कि इसमें कंपटीशन काफी हो गया, अब हर कोई डिजिटल मार्केटिंग Mm-hmm. कर रहा है, तो उससे सबसे अच्छा है कि आप Right. अपने स्किल्स को जितना आप होन कर सकते हो करो। अगर आप लोगों के Mm-hmm. लिए थोड़ा सा शुरू में फ्री में काम करो, रिजल्ट्स लेके आओ, लोगों को दिखाओ जाके, राइट। और थोड़ा सा Right. अपडेट हो नंबर्स के साथ कि नंबर्स कैसे कैसे हैं। एक लोगों के Mm-hmm. साथ एक अप्रोच से बात करो, लोग आपको आपके बोलेंगे कि मेरे पास इतना पैसा है, इसको मैं इसको इसको टारगेट करना है, इतने रिजल्ट्स लेके आने हैं, ये करना है वो करना है। तो उससे क्या होता है ना, क्लाइंट मार्केट में घूमता रहता है, राइट। कि Right. कोई इसको ये बोलेगा, ये कोई इसको ये बोलेगा ये, लेकिन आप अगर पूरी अप्रोच से पूरे एक माइंडसेट से उसको बताओगे ना, तो पूरे पूरे चांसेस है भी आपके साथ रहेगा, और आपके पास रिजल्ट्स भी होंगे, तो आपकी बात को वो बैकअप भी देगा, बैक भी करेगा कि हाँ Mm-hmm. ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। All प्लस right. आपको नंबर्स अच्छे से पता होना चाहिए, फेसबुक पे कितना रीच है, इंडिया में इंटरनेट पॉपुलेशन कितनी है, इंस्टाग्राम पे कितनी है, इंस्टाग्राम पे लोगों का बिहेवियर कैसा है, कौन कौन से एड फॉर्मेट्स अच्छे से काम करते हैं। तो ये सब बातें ना कोई बताता नहीं है अभी मार्केट में। Right. जब तक आप ये नहीं समझोगे अच्छे से, तो ये समझना बहुत जरूरी है
क्योंकि जितना लॉजिकल बात करोगे ना तो क्लाइंट कहीं ना कहीं कन्विंस होता ही है, राइट। जैसे मैंने Right. आपको All right, बजट के guys. बारे में बताया अभी, Yes, करेक्ट, कि yes. ये लोग बजट को सीधा ऐसे बोल देते हैं कि मेरे पास 2 लाख का बजट है, मेरे को 1 करोड़ लोगों को दिखाना है, लेकिन 1 करोड़ के लिए बहुत कम बजट है। उसको सामने बोलो कि सर इसमें आपको 20% लोगों को रीच आउट कर पाओगे, हम आपको कैंपेन चला देंगे, लेकिन जो पिक्चर है मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, 20 का 25 हो सकता है और 20 का 15 भी हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि 20 का 50, 60, 70 हो जाएगा। तो वो अपने को सबसे बिल्कुल क्लाइंट को सामने साफ साफ बताना है कि जो भी है ये क्लियर पिक्चर है, एंड वी हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद एवरी क्लाइंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। Right. All right, amazing. Thanks a lot, Ankit sir, for joining us. It is always a pleasure talking to you. And so, students, if you are looking out to make a career in data science, digital marketing, or any other field, we at Board Infinity can help you accelerate your career. And not only we are going to teach you about the hard skills or the technical skills, but we are going to teach you the real life skills, because we connect you with the people who are already working in that domain, and that is what our differentiating factor is. So thanks a lot, Ankit, for joining us. It was a great session. Thank you guys. Thank you so much for your time. All right. Take care. Bye.